Hello friends, this is Ashif Iqbal from Holy Home, going to teach SST Class 8 Chapter number 3 Water Resources। इसका मतलब जल संसाधन। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्सेस, एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में है पानी। इसके बारे में पढ़ेंगे। Water is a precious natural resource of prime importance without which life on earth is unimaginable. Water H2O is an example of bonding by sharing of electrons in the case of hydrogen and oxygen. It is an excellent dissolving substance. It is a renewable resource, however its availability is limited. The earth is referred to as a water planet, as 2/3 of its covered with water. Then what is it that makes it precious and highly rare gift of nature? Water is most important element in the biosphere and is essential for the existence of all forms of life on the earth. All planets and animals in given physical environments are closely interlinked and interdependent, so they cannot exist without each other. Human activities and economic developments are dependent on water. Okay. जल प्रमुख मत एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन अकल्पनीय है। जल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मामले में इलेक्ट्रॉनों को बंटवारे से बंधन का एक उदाहरण है। ये एक उत्कृष्ट घुलनशील पदार्थ है। ये एक पुनरुपयोग संसाधन है, तथापि इसकी उपलब्धता सीमित है। पृथ्वी को पानी वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके दोथाय वो क्या है जो इससे अनमोल और प्रकृति का अध्ययन दुर्लभ उपहार बनाता है। जल जीवन मंडल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को अस्तित्व के लिए ये अनिवार्य है। किसी दिए गए भौतिक वातावरण में सभी पौधे और प्राणियों का आपस में परस्पर संबंध और परस्पर निर्भर होता है, इसलिए वे एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। मानव गतिविधियों और आर्थिक विकास पानी पर निर्भर करता है। ओके, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस। यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस, इसका मतलब हो गया जल संसाधनों का उपयोग, कहाँ पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Water is a natural resource of basic significance to all living beings. The saying, "The fire of life burns in water," aptly summarizes the indispensability of water to all life activities. Large quantity of water is consumed for domestic, agriculture and industrial purpose. पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए बुनियादी महत्व का एक प्राकृतिक संसाधन है। अप्रिय संभर पूरी तरह से जीवन की आग जल भी बदलती है। घरेलू कृषि और उद्योगों प्रयोजनों के लिए भारी मात्रा में पानी का खपत की जाती है। Outdoor agriculture is the greatest consumer of water. On a global level, about 65% of water is used for agriculture. In India, more than 80% of its fresh water is being used for irrigation. Since independence, the magnitude of irrigation has been progressively increasing through persistent efforts. To meet to need the huge population, the area irrigation is increasing fast. In response to Green Revolution, which began in 1960 in many countries, including India, great strides was paid to the expansion of irrigation. ओके, इनमें से कृषि जल की सबसे अधिक खपत करने वाली वस्तु है। वैश्विक स्तर पर लगभग 65% पानी का कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में इसके 80% से अधिक ताज़े पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद निरंतर प्रयासों से सिंचाई की मात्रा उधेरतर बढ़ रही है। विशाल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र
तीव्र गति से बढ़ रहा है। 1960 के दशक में भारत सहित अनेक देशों में हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, के प्रत्युदय में सिंचाई की दिशा में बहुत जोर दिया गया है। Human beings use water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, gardening, and for recreational purposes. Water is used for power generation in electric and thermal power station. Water is needed in our day-to-day activities such as bathing, washing clothes, cleaning vehicles, flushing toilets, cleaning driveways, stairs and street and water plant. Okay. मनुष्य पानी पीने, खाना पकाने के लिए, स्नान करने, कपड़े धोने, बागवानी करने और मनोरंजन के लिए पानी का उपयोग करता है। जल विद्युत और ताप विद्युत स्टेशनों में विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में पानी का ज़रूरत होती है, जैसे नहाने, कपड़े धोने, वाहनों को धोने, शौचालय साफ करना, ड्राइवरों को साफ करना, सड़कों पर सीढ़ियाँ चढ़ाना और पानी देने वाले पौधे को पानी देना। ठीक है। ओके, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। The world population has been steadily increasing. More and more people are leading a good life. So there is an ever increasing demand of resources. Water resources like land and soil have been so recklessly used up to create their accurate shortage. With increasing population, the need of water in agriculture and industry is also increasing. Water requirements in homes is continuously rising, and the underground water drawn up in increasing the quantities to meet. ओके, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, तो संसाधन को बढ़ती मांग लगातार बढ़ रही है। भूमि और मिट्टी जैसे जल संसाधनों का उपयोग असावधानी से किया जा रहा है ताकि उनकी भारी कमी हो सके। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि और उद्योग में पानी की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है। घरों में पानी की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है और भूमिगत जल की मात्रा इसे पूरा करने के लिए बढ़ती जा रही है। ठीक है। To make the situation worse, the discharge of industrial effluents in the surface water is rendering them useless for many purposes. The strain is more acute because of deterioration of water quality of water brought about the agriculture and industry, fertilizers, pesticides, chemical and other waste mix up with waste to pollute it. स्थिति को और खराब कर देने के लिए औद्योगिक उपस्थित अनेक प्रयोजनों के लिए व्यर्थ कर रहा है। कृषि और उद्योग के कारण पानी के गुणवत्ता में गिरावट के कारण तनाव अधिक तीव्र हो गया। आवर्तक कीटनाशकों, रसायनों और अन्य अपशिष्ट को जल के साथ मिलाकर इसे प्रदूषित करने के लिए मिला दिया जाता है। Construction of dams have affected our lives, though they have economic advantage, but they destroy the natural flow of river and alter the ecosystem of the basin. They also cause large-scale siltation. बांधों के निर्माण के लिए हमारी नदियों पर बुरा असर पड़ा है। यद्यपि इनमें आर्थिक लाभ है, लेकिन ये नदी के प्राकृतिक प्रभाव को नष्ट कर देता है और बेसिन के परिस्थितियों तंत्र के बदल देते हैं। वे बड़े पैमानों में गंध भी पैदा करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी जल संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है। The earth resources must be used in planned manner with regard to their continued availability. This is a concept of conservation of resources. It is aimed at achieving the highest possible quality for life for mankind through the controlled uses of water, of resources. In the view of shortage of water, its uneven distribution in space and time, growing demands of fresh water, and its rapid
depletion and degradation of water, it has become necessary to conserve water resources on a global scale. पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग नियोजित तरीके से उनकी निरंतर उपलब्धता के संबंध में किया जाना चाहिए। यही संसाधनों के संरक्षण की अवधारणा है। इसका लक्ष्य संसाधन को नियंत्रण प्रयोग द्वारा मानव जाति का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है। पानी की कमी को देखते हुए स्थान और समय में इसका असमान वितरण है। ताज़ा पानी की बढ़ती मांग तथा पानी की तेज़ी से कमी को देखते हुए वैश्विक स्तर पर जल संसाधन के संरक्षण की ज़रूरत बन गई है। पानी के संरक्षण और प्रबंधन के उपयोग में निम्नलिखित 3 बुनियादी दृष्टिकोण शामिल है। पानी की खपत में कमी, जल अवस्था के सुधार, उपयोग प्रौद्योगिकी का विकास। Okay, reduction in water consumption of water. Reduction in consumption of water. पानी की खपत में कमी। Drip irrigation. It is highly efficient method of irrigation which can be used for all types of crops. This method supplies water to plants near its roots through a system of tubes or sprinklers. टपकन सिंचाई के एक बहुत ही कुशल तरीका है जिसके उपयोग सभी प्रकार की फसलों के लिए किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा पौधे के जड़ों के पास ट्यूब या फव्वारे की प्रणाली से पानी की आपूर्ति होती है। The effluents from settlement and industrial establishments are polluting water. Effective water conservation and management and industry should include assessment of water qualities in inlets and outlets of various purpose units in industrial plants. The great emphasis should be laid on the reclamation and reuse of water including municipal water and recycling of water, use water treatment of industry effluents, create awareness among the people about the danger water crisis. It would be helpful to reduce the domestic water wastage. With proper knowledge and skill, proper management, a huge quantity of fresh water can be saved. Moreover, municipal wastewater can be treated and recycled for gardening, washing, cleaning purpose and agricultural purpose. Okay. वास्तविक और औद्योगिक प्रतिशोधनों से अपशिष्ट प्रदूषण कर रहे हैं। पानी उद्योगों के प्रभावी जल संरक्षण और प्रबंधन में एक औद्योगिक संयंत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं इकाइयों में इनलेट और आउटलेट का जल गुणवत्ता का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। नगर निगम के जल तथा औद्योगिक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण तथा अपशिष्ट जल के पूर्ण उपयोग का जोर देना चाहिए। पानी के संकट के खतरे के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना चाहिए। घरेलू जल की बर्बादी कम करनी चाहिए। उचित ज्ञान और उचित प्रबंधन के कौशल के साथ भारी मात्रा में ताज़ा पानी बचाया जा सकता है। इसके अलावा नगरपालिका और अपशिष्ट जल का उपचार और रिसाइकल, बागवानी, धोनी और सफाई तथा कृषि उपयोग के लिए किया जा सकता है। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन। ठीक है। It involves artificial recharge of underground water, allowing rainwater to slip underground. The main objective of water are to reduce to augment the groundwater shortage and raise the water table, to reduce ground pollution, to overcome the problems of flooding and stagnation of water during the monsoon season, to recharge the groundwater aquifers for perennial availability of groundwater. Okay, इसमें बारिश के पानी के भूमिगत जल के घुसने के देखकर भूमिगत जल का
कृतीय पुनर्भरण किया जाता है। वर्षा जल संचयन के मुख्य उद्देश्य है भागों को कम करने के लिए, रूप में भूजल भंडारा के वृद्धि और पानी की मेज बढ़ाने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, मानसून के दौरान पानी की बाढ़ और स्थिरता की समस्या और उबरने के लिए है, भूजल की वार्षिक उपलब्धता के लिए, भूजल जलमानी पुनर्भरण के लिए। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया सरल और महत्वपूर्ण अनुकूल है। उपयोग के लिए कुछ तरीके इस प्रकार हैं। मौजूदा कुओं को इस्तेमाल करने, वर्षा को छोटे सेटलिंग गड्ढे में सबसे पहले एकत्र किया जाता है ताकि कीचड़ को हटाकर पाइपों के माध्यम से कुएं में डाला जा सके। इस पद्धति में रिसने के लिए गड्ढे इमारतों को थोड़ी दूर खोदे जाते हैं। वर्षा जल प्लास्टिक पाइप का माध्यम से गड्ढे में पानी खिलाया जाता है। गड्ढे का मुंह वशपन के कारण ढका रहता है और उनमें अवांछनीय पदार्थों के मिलने से रोकता है। घेरा वर्षा जल को कुछ महीनों के लिए भूमिगत भंडारों टैंकों में भी रखा जाता है और इसका उपयोग सीधे धोने, फ्लशिंग और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उपयुक्त संरक्षण उपायों में ऐसे सभी उपाय देश के कई क्षेत्रों में जल संकट की समस्या से निपटने में बहुत सफल होंगे। ओके। Watershed management. In the context of rainwater harvesting, watershed management यानी जल विभाजन प्रबंधन. In the context of rainwater harvesting and conservation of water, the term watershed refers to a basin of a tributary. It may have a small stream or it may not have any such stream, but whenever it rains, the water flows through the finally to join some streams. Watershed management is land management program of watershed area through the integration of these natural resources, land, water and vegetation of the area in a manner that ensure the best possible use of these resources. Its aim to save water in arid and semi-arid zones by effective control over rapid run of all rainwater. Okay. वर्षा जल संचयन और जल के संरक्षण के संदर्भ में वाटरशेड शब्द का सहायक नदी के बेसिन को दर्शाता है। इसमें छोटे सरिता भी हो सकती है और अथवा ऐसी कोई धारा नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वर्षा होती है तो वो जल में से होकर अंत में कुछ नदियों में मिल जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन 3 प्राकृतिक संसाधनों के भूमि और जल और वनस्पति के एकीकरण के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्र में भूमि प्रबंधन कार्यों से, ताकि इन संसाधनों को सर्वोत्तम प्रयोग सुनिश्चित हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के जल को सुरक्षित रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम यानी क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम यानी क्या होता है? बांधों का निर्माण, बड़े बड़े जो डैम होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। A dam is a barrier crossing flowing water that obstructs, directs or regulates the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. This dam involves the construction of a single dam or series of small dams on a river, its tributaries to impound huge quantity of water including rainwater. Many large water and small dams have been constructed over the last 500 years. ओके। बांध बहते हुए पानी को आर पार एक अवरोधक है जो बहाव को रोकता है, निर्देश देता है कि नियंत्रण करता है, जलाशय, झील या बारे को निर्माण करता है। इन बांधों में नदी पर एक बांध का निर्माण अथवा नदी तथा उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध शामिल है, जिनसे भारी मात्रा में जल आता है, जिससे
जिसमें वर्षा जल भी शामिल है। पिछले 500 वर्ष में कई बड़े और छोटे बांध बनाए गए। In the past few decades, the attitude of the common people towards the environment has changed. पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण के प्रति आम लोगों के रुख बदल गया है। Okay, the Narmada Bachao Andolan is an environmental movement to save natural landscape, biodiversity, and wildlife habitats. Tens of thousands of Adivasis, Dalits, and middle-class women participated in this movement. They also against the Sadar Sarovar Dam built across Narmada River in Gujarat. It focused on the environmental issue related to the deforestation that would be submerged under the dam water. Recently, it is refocused the aim to enable poor citizens to get full rehabilitation facilities from the government. Okay. नर्मदा बचाओ आंदोलन प्राकृतिक भूदृश्य जैव विविधता तथा अन्य जीवों के आवासों को बचाने का पर्यावरणीय आंदोलन है। इस आंदोलन में हजारों आदिवासी, दलित और मध्यम वर्ग के महिलाओं ने भाग लिया। ये गुजरात में नर्मदा नदी के पार बने सदर सरोवर बांध के विरोध थे। ये वनों की कटाई के संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है जो बांध के पानी के नीचे डूबे होंगे। हाल ही में इसमें कुछ उद्देश्य पर पुनर्विचार किया गया है। गरीबों नागरिकों के पुनर्वास सुविधाएं रोम सरकार से मिल जाए। ओके।